Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aditi. Good afternoon. Welcome again back to online classes. Thank you, ma'am. I hope your family is safe. Yes, ma'am. Okay. Let us see how many can join today. Nobody else has joined till it's going to the neck of the time. Ruti and Aditi. It's 1 p.m. Karishma, Isha.
So good afternoon, everyone. Six participants are here. Shweta. Preeti Ojha. So I'm starting the class because time limit is there for the class. My voice is clear, Aditi? Yes, ma'am. Okay. Today we are dealing with the topic permanent slide preparation. Last class was on microtomy. So using microtome, we can make a good slide of thin sections or ultra thin sections. By hand, we also can make good sections. So for both the sections, by freehand or by the use of microtome, we can make permanent slides. So whatever you see during your practicals as permanent slide of anatomy or taxonomy or cytology or other ones, these lower group, permanently prepared, these are under this technique we are going to study today. So this is permanent slide preparation. Question or a long answer question comes as a describe the procedure for permanent slide preparation using microtome. So it adds both the chapters together, means microtome and permanent slides. Okay. So what is the procedure of permanent slide preparation? See, we have different steps. The procedure include main 7 steps to prepare permanent slides. These are 7 steps labeled here. First is killing. You have already studied in class killing. Second is fixing and hardening. So fixing, you have already studied with the different types of fixatives. And during the process of fixing, hardening takes place. Then third is staining. We color the material after fixing for the permanent slide preparation, and the sectioning is later on. Then after staining, we section with the help of blade or razor. Dehydration. In between fixing and staining, we will study other step. Then clearing. Dehydration means removing the water content of the tissue or plant material. Then clearing means what the substance we use for dehydration, we have to clear that substance, because if we don't clear the substance, it interact with the mounting material. Then mounting means as you use glycerin, we use permanent mounting material as DPX or Canada balsam. And the last step is labeling, right? Okay, now come step-by-step procedure for studying this permanent slide preparation. The first step is killing. You can note down some important points, or you can go through the net or whatever you have available material, but you understand here. It is the first step in the preparation of permanent mounts and is of prime importance. क्यों important है? क्योंकि जब तक complete killing नहीं होगी और हम उसको fix नहीं कर देंगे, killing का मतलब हम जिस stage पे study करना चाहते हैं उस पे kill कर दें उसे, तब तक ये आगे की प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाएगी. So by killing we mean the instantaneous stoppage of all vital activities in their respective original state, without giving the tissue enough opportunity to undergo any पोस्टमार्टम चेंजेस. पोस्टमार्टम तो अक्सर समझते हैं, यानी अगर किसी को कोई चीज काटी जाए, मारी जाए,
उसके बाद जो चेंजेस होते हैं उसको तुरंत रोक देना है कि वो चेंजेस ना हो. This can only be achieved by the use of some reagents which are quick acting and which do not allow any change in outer or internal form of tissue or structure of the plant or animal material. Now, best killing, quickly I am passing on क्योंकि क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं. The best killing agents are, you may note down or you may take a snapshot, 0.1% osmic acid. And second is ether. These two substances are the best among the killing agents. Another, ether generally used for animal and osmic acid used for plant material. Another good reagent which is most commonly used is absolute alcohol. ये भी बहुत अच्छा है plant material के लिए, लेकिन इसका एक drawback है. What is that drawback? It's one of the major drawback that it shrinks and contorts the tissue. ये एकदम तुरंत जैसे ही हम यूज करते हैं absolute alcohol को, ये तुरंत उसको constriction और shrinkage cause करता है और अंदर के मटेरियल में कहीं ना कहीं डिटॉर्शन और कॉन्ट्रॉट हो जाता है. Then come to the second step, fixing and hardening. In case of minute living organisms, fixing and hardening are usually attained by killing agents. वही killing agent ही fixing का और hardening का काम कर देते हैं. Minute organisms like algae, fungi. But in case of sections of larger organisms or higher plants like pteridophytes, gymnosperm and angiosperms or animals or tissues, this is done through the use of various fixing agents. The process of fixing has varied purposes. Already हम पढ़ चुके हैं, मैं quickly pass on करती हूँ. Fixing stops any alteration in the form of tissue. It hardens the tissue and makes them fit for extensive subsequent processing, means sectioning and staining. It makes the tissue suitable and susceptible for action of stains and various other reagents. Then fixing agents make various constituents and components of the tissue optically differentiated by changing their refractive index. Fixing and hardening improves the refractive index, and that goes to 1.4 or 1.5, which is the best suited refractive index to observe under microscope. Now, various important fixing agents are Bowen's fluid, mercury chloride, 70% alcohol, acetic acid, formalin, osmic acid, potassium dichromate. Already we have studied, I think, 10 types of fixing agents for different types of tissues. Now, come in this step, before hardening, what we have to do? We have to remove fixing agent and add a particular storing reagent for further storage of the plant material or material, biological material. After fixation in any of the above fixative, through thorough washing of the material is very necessary. Otherwise, the tissue may be completely spoiled. Various reagents used for washing are washing के भी reagents है. We can use 70% alcohol. Then again for Bowen's जो हमने ऊपर लिया था fixative उसके लिए. Then iodine plus 70%. ये मर्क्यूरी क्लोराइड वाले फिक्सेटिव के लिए. देन 50% अल्कोहल फॉर एसिटिक एसिड, देन 70% अल्कोहल फॉर फॉर्मेल्डिहाइड. अगर फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेटिव है तो हम 70% अल्कोहल में वॉश करेंगे. वाटर लेते हैं व्हेन वी यूज क्लोरल हाइड्रेट for potassium dichromate, water and 0.12% chloral hydrate in case of potassium dichromate. Then again water in case of osmic acid or potassium dichromate, we can use water simply. So these are washing agents. Now come to the third step. वॉशिंग के बाद क्या है, स्टोरेज में ले जाते हैं. फिक्सेटिव में बार बार स्टोर किया जा सकता है जो उसके अलाउड है, और नहीं तो नए फिक्सेटिव बना करके उनमें उनको स्टोर करते हैं. अब आती है, अगर हम परमानेंट स्लाइड के लिए ले जा रहे हैं तो हम इसी स्टेज के बाद ही स्टेनिंग भी कर सकते हैं. अगर हम माइक्रोटोमी के लिए ले जा रहे हैं तो पहले भी स्टेनिंग कर सकते हैं और बाद में भी स्टेनिंग कर सकते हैं. तो हमारे पास प्रोसेस में थोड़ी वेरिएशन यानी 30% वेरिएबिलिटी के चांसेस होते हैं. तो स्टेनिंग की प्रोसेस आपको पता ही है. द प्रोसेस ऑफ, हम लोग ऑलरेडी स्टेनिंग का चैप्टर भी पढ़ चुके हैं. द प्रोसेस ऑफ कलरिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द टिश्यू फॉर द पर्पस ऑफ क्लियर एंड absolute differentiation through the use of different dyes or stains. So this process is called staining. The nature of dyes may be acidic, basic, or neutral. We have studied different types of dyes also with example. Usually the acidic dyes stain the cytoplasmic part and basic dyes color the nuclear part. ये हमेशा ध्यान रखना है. Acidic है
तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट को करेगी और बेसिक डाई यूजुअली न्यूक्लियर पार्ट्स को, क्रोमोसोमल पार्ट्स को, डीएनए पार्ट्स को स्टेन करेगी. However, with the basic or nuclear dye cytoplasm may also be stained for the purpose of undergraduate studies. Usually, general staining means single staining is used, which may color both nucleus and cytoplasm at the same time. हम लोग जैसे सेफनिन यूज करते हैं तो दोनों जगह जा सकता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली न्यूक्लियर मटेरियल को करेंगे तो हम एसिटोकार्बीन यूज करते हैं अगर हम लोग को डिविजनल स्टडीज देखनी हो. तो ये डिफरेंस है इसमें. Then, but where specific stains are used, they are usually used in combination of 2, means double staining, जैसे saffron and phosphine, 3 triple staining, 4 or even more stains we can use for specific purposes. Now, the next step is dehydration. It is the process, मैंने बताया आपको हमें water remove करना है. It is the process by which the traces of water present in the tissue are removed and replaced by alcohol. देखिए मैंने रेड से दोनों मार्क किए हैं. वाटर को किससे रिप्लेस करना है? अल्कोहल से रिप्लेस करना है. अगर वाटर कंटेंट इसमें रह जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? हम बाद में अगर इसको परमानेंटली माउंट करेंगे तो वो अंदर मॉइस्चर ले लेगा और उसमें कहीं कहीं माइक्रोबियल कल्चर हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा. या कभी कभी स्टेन लीक आउट हो जाता है तो डी स्टेन हो जाता है. तो हमें ये ट्रेसेस ऑफ वाटर को रिप्लेस करना है अल्कोहल से. तो हम इसको अल्कोहलाइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं क्योंकि हमें रिमूव करना है वाटर कंटेंट. अल्कोहल इज यूज्ड बिकॉज द क्लियरिंग एंड सॉल्वेंट of mounting medium are readily soluble in alcohol. क्योंकि जो भी हम माउंटिंग मटेरियल लेते हैं वो अल्कोहल में readily soluble हो जाते हैं, तो इजीली हम उनको यूज कर सकते हैं. बट माउंटिंग मीडियम एंड इट्स सॉल्वेंट, जिसमें यूजुअली हम लोग जाइलिन लेते हैं, है ना, जाइलिन का यूज करते हैं. एंड द क्लियरिंग एजेंट यूजुअली जाइलिन और बेंजीन आर अनमिसेबल इन वाटर. तो ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल मिसेबल है, जाइलॉल और बेंजीन जो है ये immiscible है, right? Dehydration is achieved by passing the tissue through gradually increasing percentage of alcohol. However, if we directly put the material in absolute alcohol, it will shrink. अभी मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ, कभी भी मटेरियल को एब्सोल्यूट अल्कोहल में नहीं करना है. तो हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस ग्रेजुअली यानी ग्रेटेड अल्कोहल में यूज करते हैं. लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू हायर कंसेंट्रेशन एब्सोल्यूट तक जा सकते हैं. नाउ स्टेप्स ऑफ डिहाइड्रेशन देखिए, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे डिहाइड्रेशन के. पहला, द स्टेन मटेरियल इज पास ग्रेजुअली थ्रू 30, 50, 70, 90, 100 means absolute alcohol. But below this 30% we can also use 15%. कुछ सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनके लिए हम लोग 15% भी यूज कर सकते हैं, और जनरली हम लोग हार्ड मटेरियल के लिए 30% यूज करते हैं. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज रिग्रेसिव स्टेनिंग मेथड. दैट इज द टिश्यू शुड बी फर्स्ट ओवर स्टेन, ज्यादा स्टेनिंग करें, देन डी स्टेन्ड टिल डिजायर्ड डेप्थ ऑफ द कलर इज अचीव. तो स्टेनिंग की प्रोसेस में क्या करें, जैसे हम कहते हैं आपसे बहुत डाइल्यूट करिए, बहुत डाइल्यूट नहीं, आप उसको उतना डाइल्यूट करिए कि अच्छे से स्टेन ले. अगर हमें नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, ओवर स्टेनिंग कर देते हैं, ज्यादा स्टेन डाल दीजिए, थोड़ा डार्क हो जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1% और एज रिक्वायर्ड हम 2% भी ले सकते हैं. HCl में उसको डी स्टेन कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि हमें दिख जाए माइक्रोस्कोप में बार बार देख करके. तो इसको डी स्टेनिंग कहते हैं. ये मेथड बेस्ट होता है कि हम पहले ज्यादा स्टेन कर दें फिर करें, ताकि हमें सही मिल जाए स्टेनिंग उस पर. आफ्टर सिंगल और डबल स्टेनिंग द एक्सेसिव स्टेन इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग द टिश्यू. अब यहाँ पर अगर हम अल्कोहल सीरीज कर रहे हैं तो हम लोग एसिड अल्कोहल बनाते हैं. हम लोग एसिड वाटर ना बना करके क्या बनाएंगे, HCl को अल्कोहल मिक्स करके बनाते हैं, तो इसको एसिड अल्कोहल कहते हैं. फॉर स्टेन प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल और एसिड वाटर यूज करते हैं. अगर हम परमानेंट नहीं लेके जा रहे हैं तो हम लोग एसिड वाटर जनरली टेम्परेरी स्लाइड के लिए यूज करते हैं. फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड रिपीटेडली टिल द डिजायर्ड डिफरेंशिएशन इज अचीव्ड, यानी जितना कलर चाहिए उतना हमको मिल जाए. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज आइदर स्टेनिंग ट्यूब और कैविटी ब्लॉक्स, यानी उसके अंदर रख के ही डी स्टेन करना चाहिए, कवर करके, है ना, कवर करके, ताकि अगर अल्कोहल है तो उड़े नहीं. टू अवॉइड द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और अल्कोहल उड़े नहीं और बाहर से मॉइस्चर आए नहीं. एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल एंड रिएजेंट्स एंड एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ मटेरियल. तो श्रिंकेज से बच जाएगा मटेरियल आपका. ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेप इज क्लियरिंग, जिसको मैंने कहा आपको कि क्लियरिंग का मतलब हम लोग इसमें से अल्कोहल रिमूव करेंगे, तो इसको हम डी अल्कोहलाइजेशन
और डिहाइड्रेशन को अल्कोहलाइजेशन कह सकते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल और सेलोसॉल भी यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए। इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोइथाइल ईथर जो सेलोसॉल है बाय द सॉल्वेंट ऑफ माउंटिंग मीडियम इज कॉल्ड क्लियरिंग। जब हम माउंटिंग मीडियम, सॉल्वेंट ऑफ माउंटिंग मीडियम होते हैं ये सारे, है ना, जो हम यूज करते हैं डीएल्कोलाइजेशन के लिए, यानी इसमें माउंटिंग मटेरियल डिसॉल्व हो सकता है। जो हम डीपीएक्स लेते हैं या कनाडा मल्सम लेते हैं वो इसमें डिसॉल्व होता है ये जो मटेरियल है, ठीक है। तो हम इनमें इसको क्लियर करते हैं, तो ये प्रोसेस क्लियरिंग ऑफ अल्कोहलाइजेशन कहलाती है। द टर्म क्लियरिंग इज ऑल्सो यूज बिकॉज द सॉल्वेंट और clearing agents imparts transparency to the tissue. So the best clearing agents are cedarwood oil, clove oil, but the most commonly used reagent is xylene. हम लोग xylene को ज्यादा यूज करते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया और यहाँ भी मैंने रेड से मार्क किया है, तो ये कॉमन है, हमारी लैब में अवेलेबल होता है। cedarwood oil थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे जिसको आप पाइन ऑयल भी कह सकते हैं, और clove oil तो लौंग का तेल है तो ये और महंगा होता है, तो इसको यूज करना जनरल लेबोरेटरी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो Zylol is cheaper as against these two other solvents. In its place, benzene may also be used. बेंजीन को भी यूज कर सकते हैं, since xylene makes the tissue hard and brittle and also causes its shrinkage. As such, it may be avoided, and in its place, we can use benzene or cedarwood oil or clove oil. Now, the procedure of clearing क्या है, step by step I have noted here. The material after absolute alcohol is placed in xylene or any other clearing agent. If the clearing agent turns turbid or white, it shows that dehydration is not complete. अगर वो turbidity मिल्की रह जाए या उसमें कुछ ओपेकनेस दिखाई दे तो इसका मतलब अब हमें एक बार और करना है क्लियर। Hence, put the material again in fresh absolute alcohol for 5 minutes and then dip in clearing agent. फिर हम पीछे जाएंगे, पिछला स्टेप फॉलो करेंगे, फिर हम क्लियरिंग एजेंट के लिए वापस आएंगे for 5 minutes till it become transparent. ये समझ में आया कि हमें ट्रांसपेरेंसी तक मटेरियल को लाना है ताकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंप्रूव कर जाए और हम जो भी सेक्शनिंग करें और स्लाइड प्रिपरेशन करें वो एकदम क्लियर हो, स्टेन अच्छा ले और हमें माइक्रोस्कोप में क्लैरिटी से दिखाई दे। Still, if turbidity appears, but the material for 5 minutes in fresh clearing agent, है ना, तब फिर हम दोबारा करेंगे क्लियरिंग एजेंट में। अब आते हैं 6th स्टेप। ये केवल मैंने कॉमन स्टेप फॉलो किए हैं, अभी प्रोसीजर पूरा नहीं है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो 6th स्टेप है माउंटिंग। जैसे आप ग्लिसरीन यूज करते हैं टेम्परेरी स्लाइड के लिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, द मटेरियल आफ्टर इट हैज बीन मेड ट्रांसपेरेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए ड्रॉप ऑफ माउंटिंग मीडियम which is placed in the center of the slide and is covered by cover slip. The mounting medium should be of the same refractive index as the cover slip. Cover slip का जो refractive index है वही होता है कनाडा बॉल्सम का, होना चाहिए, होता ही है ना। तो RI means refractive index and that is 1.5. ये बहुत important refractive index है जो कि clarity of the ऑब्जेक्ट हमें देता है, यानी कोई भी टिश्यू और द मटेरियल। द बेस्ट माउंटिंग मीडियम एज ऑलरेडी टोल्ड यू कनाडा बॉल्सम। कनाडा बॉल्सम आपको पता ही है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से हमको मिलता है। डिसॉल्व इन xylene, इसको xylene में ही डिसॉल्व करते हैं जो पिछले हमने क्लियरिंग एजेंट लिया था। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कवर स्लिप के लगभग बराबर 1.4 आ जाता है अगर हम Zylol में डिवाइड करते हैं। वैसे इसका 1.5 होता है, लेकिन चूंकि हमें डिसॉल्विंग मटेरियल चाहिए, ये जमा हुआ होता है तो हम तो डाल नहीं सकते, तो हम उसको एक थिकनेस तक करते हैं और जब हम डाल देते हैं तो xylene उड़ जाती है और वो स्टेबल हो जाती है स्लाइड। उसकी जगह पर हम लोग यूपेरॉल भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये भी अल्कोहलिक सब्सटेंस है लेकिन इट इज डिसॉल्व्ड इन xylene, हार्ड हो जाता है, रेजिन टाइप है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.4 है। नाउ प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग विद ए ग्लास रॉड से ही टच किया जाता है, उंगली से, हाथ से, ब्रश से नहीं हो सकता। ये ग्लास के टिप पे लेते हैं हम लोग। With a glass rod, put a small drop of Canada balsam in the center of slide. पहले हम रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग फॉर्सेप्स से उठा करके, ब्रश से भी नहीं कर सकते, फॉर्सेप्स से उठा के रखते हैं। कभी कभी मटेरियल छोटा होता है तो ब्रश से करते हैं, लेकिन फिर हमको क्या करना है, Zylol से छुड़ाना पड़ता है, मटेरियल चिपक जाता है या ब्रश चिपक जाता है इस कैनाडा बॉल्सम पे। ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम xylene to this drop with a brush. Take a cover slip and put it
वन एज ऑन द स्लाइड टचिंग द बाल्सम। जैसे हम लोग नॉर्मली स्लाइड रख के बताते हैं ना, एक तिरछा कर लीजिए, हाथ से लगा उसको टच करा दीजिए माउंटिंग मटेरियल या ग्लिसरीन पे और नीडल लगाइए और धीरे से निकाल लीजिए, बिल्कुल वही मेथड इसके लिए भी है। द अदर एज ऑफ द कवर स्लिप शुड बी हेल्ड ऑब्लिकली विद द नीडल एज, इसमें मैं शायद फिगर नहीं मैं बना पाई हूँ। नाउ ब्रिंग डाउन स्लोली द एज ऑफ द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ नीडल एज शोन इन फिगर 2। अब हो सकता है मैंने नहीं दिया इसमें। दिस विल प्रिवेंट द एयर बबल फ्रॉम एंटरिंग इन द बिटवीन बाल्सम एंड कवर स्लिप। क्लीन एनी ओजिंग बाल्सम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। जो बाहर निकल आता है उसको ब्लॉटिंग पेपर से रिमूव करते हैं, लेकिन ब्लॉटिंग पेपर को जाइलॉल में डिप करके करते हैं। सीधे ब्लॉटिंग पेपर तो चिपक जाएगा कनाडा बाल्सम से, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जाइलॉल लगा लेते हैं और उसको साफ करते हैं। Okay, precautions during mounting. There should be no air bubble in the balsam. ये ध्यान रखना है एयर बबल ना हो। अगर दिखता है आपके ड्रॉप रखने में एयर बबल आया है तो आप नीडल लेके उसको रप्चर कर देंगे, बस्ट कर देंगे। The material should be in the center of the cover slip. The cover slip should be in the center of the slide. Canada balsam should not ooze out of the cover slip. तो इतनी प्रैक्टिस हो कि हम उतना ही डालें कि पूरी कवर स्लिप में स्प्रेड कर जाए, बाहर भागे ही नहीं। आ भी गया है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कैसे साफ करना है। और द लास्ट वन इज द लेबलिंग। नाउ पुट डाउन योर नेम ऑन वन एज ऑफ द स्लाइड। ये देखिए ये नेम स्लिप है, इसको हम लोग एक साइड में लगा देते हैं। ये तो आपका तैयार हो गया, ये मटेरियल है, ये कवर स्लिप है, इसके अंदर जो लाइट कलर है ये कनाडा बाल्सम है, दिस इज स्लाइड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन अदर एज ऑफ द स्लाइड है ना, एक साइड में हम लोग नाम और एक, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द मटेरियल और योर नेम एट द लास्ट। देन लेबल शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप अकॉर्डिंग टू द स्पेस लेफ्ट ऑन द स्लाइड। यहाँ जितना स्पेस बचा है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है, राइट। तो दिस इज जनरल स्टेप फॉर preparation of permanent slide. अब now I come to permanent slide for free hand sections. अब देखिए कहाँ पर section है और कहाँ पर आपको staining करना है। तो free hand sections can be turned into permanent preparation quite easily. Once you have cut your sections, take unstained sections and follow the procedure outlined in flow chart. मैं भी बताऊंगी आगे, एक फ्लो चार्ट आएगा तो उसमें है। If the sections are thin enough, variable information may be obtained using this relatively simple technique. Xylene should not be inhaled. Xylene का स्मेल बहुत तेज होता है, तो ये प्रिकॉशन लेनी है कि नाक पे या तो हम लोग मास्क लगा के काम करें या हमसे कम से कम हम लोग 2 फीट के डिस्टेंस पे रख के काम करें, है ना। माउंटिंग मीडिया यूज्ड एज कनाडा बाल्सम और डीपीएक्स। तो ये मैंने क्विक उसमें जो पॉइंट्स हैं वो ले लिए हैं। ये देखिए अब ये चार्ट है, ऑलरेडी आपको बताया गया है। हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग हाथ से सेक्शन काटते हैं तो ये वाला जो है सिलेक्ट अ थिन सेक्शन जो आपने काटा है, सबसे पहले सेक्शनिंग कर लेंगे। स्टेन विद एक्वस सैफरनिन फॉर 3 to 4 minutes। जो हम लोगों ने सैफरनिन एक्वस यूज करते हैं उससे स्टेन कर लेंगे। वॉश थॉरोली विद वाटर टिल वाटर रिमेन्स कलरलेस। तब तक साफ करते हैं हम लोग अपने मटेरियल को, सेक्शन को, जब तक कि वो पिंकनेस उसमें पानी में खत्म हो जाए। नाउ डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट के लिए मैंने कहा सॉफ्ट मटेरियल में 15% भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जनरली 30% यूज करते हैं। ये सीरीज है पूरी, तो ऑलरेडी हम पॉइंट में पढ़ चुके हैं डिहाइड्रेशन में। 15% for 5 minutes, 30% for 5 minutes, 50% for 5 minutes, 70% for 5 minutes, 90% for 5 minutes if required into the एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब स्टेन विद फास्ट ग्रीन, इतनी सीरीज होने के बाद हम क्या करेंगे, 90 के बाद उसको हम लोग फास्ट ग्रीन से स्टेन करेंगे, लेकिन फास्ट ग्रीन को वाटर में प्रिपेयर नहीं करना है, 90% एल्कोहल में प्रिपेयर करना है। अब फिर डी स्टेन करेंगे 90% एल्कोहल में और अब यूज करेंगे एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो पिंक स्टेन आ गया सैफरनिन और ग्रीन स्टेन आ गया आपके टिश्यू में। अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्लियरिंग और डीएल्कोलाइजेशन। इसके लिए हम लोग फिर सीरीज का यूज करते हैं फ्रॉम 25% टू प्योर जाइलॉल। देखिए कैसे, पहले 25% 3 to 5 minutes according to material, 50% 3 to 5 minutes, 70% 3 to 5 minutes, 90% 3 to 5 minutes एंड प्योर जाइलॉल में डालने के बाद 2 चेंजेस, यानी एक बार डालेंगे निकाल लेंगे, दोबारा डालेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखता जाएगा मटेरियल, उसमें कलर दिखता जाएगा ग्रीन एंड रेड। अब यहाँ पर आने के बाद आपका आखिरी स्टेप है माउंट इन कनाडा बाल्सम। तो ये मैंने एक क्विक व्यू, अब एग्जाम के हिसाब से ये आपका पूरा है, राइट।
अब अगर माइक्रोटोम आता है तो फिर हम आगे शिफ्ट करेंगे। अब देखिए, ये है आपका सेकंड सेक्शन, परमानेंट स्लाइस फॉर माइक्रोटोम सेक्शन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना आज हो जाएगा, फिर इसी में जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा हम लोग कल फॉलो करेंगे इसको। अब इसके स्टेप्स में देखिए कहाँ वेरिएशन हुआ, वहां पे 7 स्टेप थे, यहाँ पर 10 स्टेप्स हैं। ओके, क्योंकि माइक्रोटोमी के साथ ले रहे हैं। तो मेथड मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड इज कॉल्ड पैराफिन मेथड। इसको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द पैराफिन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड। तो एक ही बात है, यानी माइक्रोटोम मेथड और पैराफिन मेथड। फॉर द पैराफिन मेथड द स्टेप्स आर एज फॉलोज। क्या स्टेप्स हैं? पहला है टिश्यू रिसेक्शन ऑफ सैंपल। टिश्यू रिसेक्शन का मतलब टिश्यू का तैयार करना। अगर बहुत बड़ा टिश्यू है, जैसे हमने पूरी टहनी काटी, तो इतनी टहनी को तो एक साथ हम कर नहीं सकते, तो उनको बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं। जब हम आपको क्लासरूम में करने के लिए कोई स्टेम मटेरियल देते हैं तो आपकी वो एक फिंगर टिप के बराबर होता है, छोटा सा, यानी 1 सेंटीमीटर तो 1.5 सेंटीमीटर होता है, तो इसको रिसेक्शन कहते हैं। तो जो हम कलेक्ट करके लाए मटेरियल, उसको अप्रोप्रिएट साइज में काटना। सेकंड है फिक्सेशन, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। थर्ड है वॉशिंग, फोर्थ वॉशिंग एंड हार्डनिंग, फोर्थ है डिहाइड्रेशन, देखिए अभी स्टेप चल रही है। फिफ्थ है क्लियरिंग, सिक्स्थ है इनफिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग इन पैराफिन। ये देखिए 6 स्टेप एडिशन, दिस इज न्यू स्टेप फॉर यू नाउ। देन सेवेंथ सेक्शनिंग विद माइक्रोटोम, दिस इज, आप वहां बाय हैंड सेक्शन नंबर 1 पे लेते थे, यहाँ पर सेक्शनिंग विद माइक्रोटोम है नंबर 7 पे। 8 है माउंटिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जब तैयार हो जाएगा माइक्रोटोम के बाद, तो माउंटिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बहुत बड़ा स्टेप है। केवल डीपीएक्स में डालना नहीं है। अभी चूंकि वैक्स के हमारे जो सेक्शन काटे हैं वो वैक्स के अंदर हैं, तो पहले वैक्स माउंट होगी, फिर उसके बाद वैक्स रिमूव की जाएगी, फिर उसमें क्लियरिंग की जाएगी। तो ये माउंटिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, देन क्लियरिंग एंड स्टेनिंग। अब यहाँ पर हम स्टेन करते हैं, जो हम स्टेन 3 स्टेप पे करते थे, ये 9 स्टेप पे कर रहे हैं। और 10वें स्टेप पे प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट माउंट्स, यहाँ डालेंगे डीपीएक्स नंबर 10 पे। देन और लेबलिंग करेंगे इसके बाद, तो इसी स्टेप में लेबलिंग आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, फर्स्ट ले देती हूँ मैं स्टेप टिश्यू रिसेक्शन, ऑलरेडी समझा भी दिया आपको, क्विकली आई विल रीड इट आउट। टिश्यू रिसेक्शन इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ an organ, tissue or structure which will be used as a sample। हम जो चाहते हैं उसको निकाल लें। अगर हम लीफ के पिटियोल का चाहते हैं, स्टेम का चाहते हैं, या लीफ का भी चाहते हैं, तो हम लीफ का भी कर सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल मटेरियल में, एनिमल में मान लीजिए इंसेक्ट स्टडी करना है, तो इंसेक्ट का फेदर अलग कर लेंगे, पंख अलग कर लेंगे, उसकी टांगे अलग कर लेंगे, उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग कर लेंगे, उसका क्यूटन अलग कर लेंगे, जो भी स्टडी करना चाहते हैं। माउथ पार्ट्स करना चाहते हैं तो आपने जूलॉजी में भी माउथ पार्ट्स और बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई देखा होगा स्टडी के समय, वैसे ही इसको रिसेक्शन कहते हैं। दीज विल बी सेपरेटेड into different anatomical regions depending on the nature of study. It is then placed in fixative as the first stage of histological procedure. Fixation same process है। अब आप समझ गए इसको, फिक्सेशन कैसे है, तो वही सेम है। हिस्टोलॉजिकल हम फिक्सेटिव मटेरियल में डालते हैं, तो ये सेम है, यानी इसमें मिनिमम लॉस हो और सबसे अच्छा मटेरियल फिक्स हो। देन प्रिकॉशंस जो लेनी है ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, चूंकि हम लोग माइक्रोटोमी के लिए जा रहे हैं। मोस्ट स्पेसिफिक this step is the specimen should be fixed 6 to 8 hours or overnight. If the specimen is smaller than 5 millimeter on side, then several hours will be sufficient. Tissue should be fixed and stored in refrigerator at 4 degrees Celsius. This is also important. Unless the tissue is fixed soon after the removal from the body, it will undergo degenerative changes due to autolysis. यानी सेल्फ डिजेनरेशन हो जाता है एंड प्यूट्रिफैक्शन, प्रोटीन लॉस हो जाता है, सो दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल सेल विल लॉस्ट। अगर आपने तुरंत फिक्स नहीं किया है और फिक्स डिले कर रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करें। थर्ड स्टेप इज वॉशिंग। फॉलोइंग फिक्सेशन द टिश्यू सैंपल मस्ट बी वॉश्ड, क्योंकि हम इसको वॉश करेंगे ताकि हमारा सैंपल की एक प्रॉपर हार्डनिंग हो। और अगर हमें फिक्सेटिव में नहीं इसको स्टोर करना है तो हम इसको स्पेसिफिक कॉर्नर स्प्लिट में स्टोर कर सकें। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन।
है ना। ये हम लोग डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को हमेशा परमानेंट साइट के लिए ही यूज करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हम लोग फ्री हैंड सेक्शन के लिए करके आए, कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, लेकिन हम लोग क्या तैयार करते हैं, लोअर 15% कंसेंट्रेशन से 90% तक तैयार करते हैं, और लास्ट में हम लोग ले जाते हैं कहां पर, 100% और एब्सोल्यूट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए आप इसको, जस्ट इफ यू स्टडी दैट, टू प्रिपेयर द स्पेसिमेन फॉर पैराफिन एम्बेडिंग, क्योंकि अब हम लोग पैराफिन वैक्स के ब्लॉक बनाएंगे, एम्बेडिंग करेंगे उसमें सेक्शन से पहले, द स्पेसिमेन मस्ट बी डिहाइड्रेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ अल्कोहल अप टू एब्सोल्यूट अल्कोहल। इथेनॉल इज प्रेफरेबल टू मेथेनॉल। मिथेनॉल कम यूज किया जाता है, इथेनॉल ज्यादा यूज किया जाता है, सिंस इट इज लेस हार्श ऑन द टिश्यू। मिथेनॉल हार्श होता है और हार्डनिंग ज्यादा कॉज कर देता है और श्रिंकेज भी हो सकती है, लेकिन इथेनॉल प्रेफरेबल है। दिस रिमूव्स ऑल वाटर विच इज इमिसिबल इन पैराफिन, है ना। तो वाटर जो पैराफिन को डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसमें वो इमिसिबल है, उसको निकालना है वाटर को, और लाना क्या है, अल्कोहल में पैराफिन घुल जाता है, जो कि हमें पैराफिन के ब्लॉक्स बनाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वॉशिंग स्पेसिमेन इन वाटर, दे शुड बी प्लेस्ड इन द लोअर ग्रेड ऑफ सीरीज एंड देन पास थ्रू द हायर ग्रेड। वैसे ही 15% से एब्सोल्यूट तक जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ग्रेडेड सीरीज का? ग्रेडेड सीरीज का सिग्निफिकेंस यही है कि हम श्रिंकेज को अवॉइड करें। दिस इज नेसेसरी टू अवॉइड वायलेंट डिफ्यूजन। अचानक परफ्यूम की तरह से अंदर न घुस जाए, जैसे परफ्यूम स्प्रे करते हैं वो हार्ड होता है, मोर देन 70%, तो बहुत जल्दी पियर्स करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि जहां टिश्यू पे लगाइए वहां पर थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकती है। तो ये इसी तरह से वाटर एकदम रिमूव कर देगा, अंदर चला जाएगा, तो हमको उसको अवॉइड करना है, श्रिंकेज ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो मटेरियल। दूसरा है, इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट डेलिकेट एंड फ्रेजाइल टिश्यू। अगर लोअर कंसेंट्रेशन लेंगे तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, एकदम हायर लेंगे तो खराब हो जाएगा। देन दिस इज जो सीरीज हम यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेडेड सीरीज। द अल्कोहल शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर, सिंपल डिस्टिल्ड वाटर, टू प्रिपेयर इट्स ग्रेड्स। In most histological work, we use 15% to the absolute alcohol we use. Clearing, this is the same step. क्लियरिंग करना है। अब अल्कोहल को जाइलॉल सीरीज से निकाल करके क्लियरिंग कर देना है। जाइलॉल जो है वो आगे चल के कनाडा बॉल्सम के लिए प्रेफरेबली यूज किया जाता है। सेम स्टेप्स हैं। और कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट्स जो हम लोग पैराफिन ब्लॉक के लिए यूज करते हैं, उसमें जाइलीन है, टोलुइन एंड बेंजीन है। जाइलिन और बेंजीन मैंने पहले भी बताया आपको, सिडार वुड ऑयल भी बताया, उसके साथ मैंने क्लोव ऑयल भी बताया। इसके अलावा हम क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बट क्लोरोफॉर्म हैज हैजार्डस इफेक्ट ऑन अस, हमारे ऊपर होता है, इसलिए हम इसको जनरली यूज नहीं करते। साथ साथ ये मटेरियल को वैसे बहुत अच्छा है कि ब्रिटल नहीं करता, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इनहेल कर लेंगे तो हम ही बेहोश हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्लोरोफॉर्म अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल में ये बहुत अच्छा काम करता है, और इसमें हम लोग रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, 5, 10, 15 मिनट नहीं, आप रात भर छोड़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा, सुबह आइए एकदम ट्रांसपेरेंट मिलेगा। इसके अलावा हम लोग CCl4 भी यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। इट हैज ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म, लेकिन बस उसकी जगह पे ये चीपर है तो क्लोरोफॉर्म की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिडार वुड ऑयल ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, ये सबसे कम, सबसे अच्छा सिडार वुड ऑयल है, सबसे कम हार्डनिंग इफेक्ट होता है इसका। नेक्स्ट टेक्निक्स फॉर क्लियरिंग मैंने ऑलरेडी वहां भी बता दी है, यहाँ क्विकली आई विल डू, है ना। इफ द टिश्यू इज बीइंग क्लियर्ड इन क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मे बी लेफ्ट ओवरनाइट इन जाइलिन, बेंजीन और टोलुइन। वन चेंजेस आफ्टर 30 to 60 मिनट्स। इनमें जो है हम लोग 5-5 मिनट सॉफ्ट टिश्यू के लिए और हार्ड टिश्यू के लिए 30 to 60 मिनट्स रख सकते हैं, तो 1-1 घंटे का होता है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लैब में कर रहे हैं तो आते ही, अगर आपको 5 सीरीज यूज करनी है तो 5 घंटे लगेंगे, आते ही शुरू कर देंगे, 1-1 घंटे के बाद करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो इट इज अ लॉन्गर प्रोसेस एंड टेक्स टाइम, यू हैव टू स्टे देयर। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप आपका, इस पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी दूंगी, हाउ टू प्रिपेयर पैराफिन ट्रेस, वो मैं आपको प्रैक्टिकल भेजूंगी आपके उसमें, आज के डेट के साथ आप लोग उसको करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। पैराफिन इन्फिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग, पैराफिन को इनफिल्टर करके प्लांट मटेरियल में पहुंचाना और उसके बाद एम्बेडिंग करना। एम्बेडिंग का मतलब डुबोना, उसमें ब्लॉक्स बनाना। आफ्टर फिक्सिंग, मैं यहीं तक ले रही हूँ, है ना, इसके बाद हो सकता है टाइम आउट हो जाए। आफ्टर फिक्सिंग डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, द टिश्यू बिकम्स बिट हार्ड, however tissue still lack proper consistency for sectioning, they are not sufficiently rigid to be sliced into thin sections.
the best method to cut sections of the material is to permeate अंदर ले जाना it thoroughly with the medium, that is the fluid at one stage, and solid when cooled or exposed to air. This medium should be soft enough, मुलायम होना चाहिए to cut readily, क्योंकि हमारा material इसमें नहीं तो cut नहीं हो पाएगा अगर hard हो गया, and hard enough to act as a support against the impact of knife. हमने चाकू से काट भी सके उसको, मतलब wax को, and to hold the different parts in proper relation with other after the section have been cut. मैं यहीं तक आपको पढ़ा रही हूँ और यहीं से मैं कल फिर आपका स्टार्ट करूंगी. तो now if you have any question you may ask. 2 minutes are left. So I will take a gallery view. If you want to on your videos you can, otherwise I will take a screenshot for your